We are live. Hello dear Sakhi. कैसे हैं आप सब? I hope you all are mentally, physically and emotionally strong. Well, आज के session we have a Vaidya. That's what he likes to be called as. So, We have Dr. Jayesh Thakkar with us. He is a registered Ayurvedic practitioner. And he has got his degree BAMS from JB Roy State Medical College and Hospital. And there he has worked in Department of Panchakarma and Department of Kaya Chikitsa. And in 2015, he started privately practicing as an Ayurvedic doctor in Jai Ayurvedic Baliganj. He has got many diplomas and certificate courses in Ayurveda. Naming a few, इनके पास डिप्लोमा है पंच भौतिक चिकित्सा. That is what it is called, पंच भौतिक चिकित्सा. Okay, he has got certificate in Ayurveda dermatology, clinical panchakarma, to name a few. Well, as of now, 5,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को इन्होंने ट्रीट किया है. एंड दैट टू छोटे मोटे डिजीजेस से लेकर जो हमारे दिनचर्या में हमारी हालत खराब कर देते हैं, जॉइंट पेन, डायबिटीज, गैस्ट्रिक कंडीशन. सो इट्स मोर देन 5,000 पेशेंट्स जिनको इन्होंने ट्रीट किया है. His documented cases has been printed in very reputed journals. And not only that, he is a very, very good writer. And इनको second prize मिला है in Ganga Sahib Memorial All India Essay Competition. To prove his good editorial skill, he is also a co-editor of E-Magazine. मैगजीन का नाम है आयुर्वेदा प्रचार पत्रिका. तो अगर डॉक्टर साहब का लिखा हुआ कोई आर्टिकल आपको पढ़ना है तो आपको ये मैगजीन जरूर लेना चाहिए. His updated are there. He organizes various medical camps and participate in various online and offline webinars and seminars. Taj Bengal में कोई seminars होता है, he has been a part of that also. He has traveled to Guwahati, Bhubaneswar, and participated in various medical camps there. He is a founder of Bangya Ayurveda Abhiyan. Is that so? Yes. And he is an official skin consultant for Eastern India for Kama Ayurveda. जो हमें पता है कि हम कहीं भी जाते तो we always see Kama Ayurveda. So he is an official skin consultant, Eastern India region के. He is an executive of Vishwa Ayurveda Parishad, West Bengal. He has taken many classes for foreign delegates. डॉक्टर साहब, अगर हमें भी कोई क्लासेस करना है, कुछ सीखना है, so are you ready for that too? Okay. So thank you so much, Dr. Jayesh Thakkar, for it was very kind of you to take out time for our Sakhi members. The time is all yours, Doctor. We welcome you to the seminar. thank you, and namaste to all of you. Hope I'm visible and audible. Yes. Let me share the screen also. I think it's visible. Screen is blank. Yes, now it's there. Yes, it's visible. Hello? Yes, the screen is visible, perfectly clean, clear, and you're also visible. Audible. Okay.
So let me start. Firstly, namaskar and thank you to all the Sakhi members to have me here. मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ। तो जैसे आज हम लोग आयुर्वेद एक परिचय इस बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे। मुझे पता है आप सबके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, मेडिकल भी है और आयुर्वेद रिलेटेड बहुत सारे, आप सब नोट डाउन करके रखिए। हम पहले जैसे कि बताया गया है कि 30-40 मिनट्स एक डिस्कशन करेंगे। इंटरेक्शन विल गो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो पहले जब आज आयुर्वेद के लेके बात करने वाले हैं तो आप सबको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ग्रीन बैकग्राउंड होगा और आयुर्वेद लेके कुछ बोलेंगे, लेकिन ये तो कलरफुल है, राइट? इट सिम्स कलरफुल बिकॉज सखी मेंबर्स मेड मी थिंक डिफरेंटली। सो आई एम थैंकफुल। मैं धन्यवाद करता हूँ सब मेंबर्स का, ऑर्गेनाइजर्स का। तो आयुर्वेद एक परिचय। मैं वैद्य डॉक्टर जयेश ठक्कर, बीएमएस जो है आयुर्वेद की रजिस्टर्ड डिग्री है, रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुर्वेद, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। जो ये आयुष स्ट्रीम है वो एलोपैथी के पैरेलल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट है, मेडिकल साइंसेस है। इसमें जो रजिस्टर्ड डिग्री होती है आफ्टर +12 साइंस वो बीएमएस होती है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एमबीबीएस की तरह 4.5 साल का कोर्स होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। हम लोग भी डिसेक्शन और क्लिनिकल हॉस्पिटल क्लासेस करके 1 ईयर इंटर्नशिप करके ये डिग्री बीएमएस, जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स होते हैं उनकी मिनिमम बीएमएस डिग्री होती है। इसके बाद हायर स्टडीज होती है, एमडी, एमएस, पीएचडी। और जो हम लोग आज परिचय लेके बात करने वाले हैं, अगर किसी का परिचय चाहिए तो राइट सोर्स या प्रॉपर पॉइंट से ही अपने को वो परिचय मिलेगा। तो बीएमएस जो भी डिग्री होल्डर होते हैं वो रजिस्टर्ड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है। जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया, मैं शॉर्ट में ही कहूंगा, मैं एक रजिस्टर्ड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ। आई एम कोलकाता बेस्ड। तो परिचय तो अपने शुरू करते हैं। तो परिचय, ये जो परिचय होता है ना, ये परिचय पत्र हम सब ने सुना होगा। और जब भी मैट्रिमोनियल या घर में लड़के लड़की का जब शादी की बात आती है तो परिचय पत्र अपने बनाते हैं। तो परिचय पत्र को लेके ही अपने शुरू करते हैं। अगर आयुर्वेद का परिचय पत्र देना हो तो चलो भाई ठीक है, आयुर्वेद के रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास पूछने गए, लेकिन परिचय पत्र में होगा क्या? एक उसका जो है फैमिली बैकग्राउंड, उसका नाम, एड्रेस, डिटेल्स, और ज्यादा अगर जानना होता है तो उसके घर वालों से अपने खबर लेते हैं। अगर कोई नागपुर में रहने वाला है तो अपने कानपुर जाके उसका खबर नहीं लेंगे, तो नागपुर का नागपुर से ही परिचय लेना होगा। तो फिलहाल आपके मन में आयुर्वेद लेके जो भी चल रहा है कि आयुर्वेद मतलब बाबा, आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी, आयुर्वेद मतलब कुछ योगा एक्सरसाइज, या आयुर्वेद मतलब टूथपेस्ट या ग्रीन, जो भी चल रहा है कुछ देर के लिए वो कृपया करके भूल जाते हैं। लंबी सांस लीजिए, टेक ए डीप ब्रीथ एंड लेट्स स्टार्ट ए न्यू, एक फ्रेश परिचय से शुरू करते हैं। तो आयुर्वेद जो है वो इंडियन मेडिकल साइंस है। ये इंडिया में बल्कि पूरे विश्व का सबसे ओल्डेस्ट एंशिएंट साइंस है। कहा जाता है 3000-5000 साल पहले का इसका ओरिजिन है, और ब्रह्मा से ओरिजिन है। जैसे अपने 4 वेद है, आयुर्वेद को पंचम वेद कहा जाता है। ये आयुर्वेद जो शब्द है, आयु और वेद, 2 शब्द का कॉम्बिनेशन है। आयु मतलब जीवन, लाइफ, और वेद मतलब नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज, साइंस। तो आयुर्वेद इज बेसिकली वे ऑफ लिविंग। तो हम लोग अगर सोच रहे हैं कि ये कोई मेडिसिन का ही ओनली फंडा होगा, वैसा नहीं है। ये जो है ये जीवन जीने की कला है। हर साइंस के कुछ बेसिस होते हैं। तो अपना जो आयुर्वेद इंडियन साइंस है, इसका बेसिस पंच महाभूत से है। पंच महाभूत, ये 5 महाभूत हैं। आप मेरे स्क्रीन पिक्चर में देख रहे हैं, आप उसको अच्छे से देखिए। 5 महाभूत दिख रहा है इसमें, आई थिंक दिख रहा है आपको। पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु और आकाश, ये 5 महाभूत होते हैं। ये आयुर्वेद के बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये जो है, जैसे अपने केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, मॉडर्न साइंस जब पढ़ते हैं तो वी नो 120 प्लस एलिमेंट्स आर देयर। सिमिलरली इंडियन साइंस कहता है 5 महाभूत है। और ये 5 महाभूत आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये 5 इंद्रियों से रिप्रेजेंट होते हैं। अपने 5 सेंस ऑर्गन्स जो है, अपने जो स्मेल लेते हैं वो पृथ्वी महाभूत का गुण है, तो वो नेजल नाक से अपने स्मेल ले रहे हैं। आंख से जो देख रहे हैं वो अग्नि महाभूत का है। तो जो पांचों इंद्रिया है, थोड़ी देर के लिए आप खुद ही अपने मन में काउंट करिए कैसे 5 डिफरेंट ऑर्गन्स और 5 महाभूत से अपने रिलेट कर रहे हैं। तो ये बेसिक एलिमेंट है। अब अपने पास जो पानी का ग्लास है उसमें ऐसा नहीं कि पानी का ही एलिमेंट है, पानी महाभूत ही है। भूत मतलब दैट एग्जिस्ट, समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग। सो ये जो महाभूत जो है, ये बेसिक एलिमेंट पानी जो है, पानी जो एक्चुअल महाभूत है वो तो एटम लेवल पे जाएगा। तो जो पानी के ग्लास में पानी दिख रहा है उसमें एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग। पांचों महाभूत होता है। वाटर महाभूत का, जो पानी महाभूत का परसेंटेज ज्यादा है इसलिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे। सो ये जो 5 महाभूत है अपने पांचों इंद्रिय से, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं क्योंकि बेसिक अगर क्लियर होगा, अगर परिचय लेना है तो उसके घर वालों का परिचय, कौन से कुल से है, कौन से फैमिली बैकग्राउंड का जानेंगे तो अच्छे से अपना उस कैंडिडेट का परिचय होगा, राइट। सो ये जो 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सो इन्हीं का कॉम्बिनेशन हम लोग समझने के लिए इसी को वात पित्त कफ कहते हैं। जो अभी तक आपके मन में चल रहा था कि डॉक्टर साहब कब वात पित्त कफ लेके बोलेंगे, तो ये जो वायु, वात, पित्त और कफ है, इनको समझने के लिए ये जो 5 महाभूत से डायरेक्ट रिलेशन है। और इजी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए अपने 3 चीजें होती है, विंड, सन, मून। ये 3 जो है, विंड को अगर वायु से कंपेयर करेंगे, सन को अग्नि से, पित्त से, और मून को कफ से। ये 3 फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में अपने बताते हैं इनिशियल क्लासेस में अर्थ इज राउंड, पृथ्वी जो है गोल है। थोड़े और बड़े क्लास में आते तब उनको ऑरेंज दिखा के बताते नो, अर्थ इज एलिप्टिकल। तो कोई भी साइंस होता है ना, जैसे जैसे अपने प्रोग्रेस करते उसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाती है। अभी समझने के लिए अपने सोच लेते हैं वात पित्त कफ, इसको हम विंड, सूरज, हवा, सूरज और चांद से कंपेयर कर रहे हैं, इसको लिंक कर रहे हैं। तो जो भी कैरेक्टर्स हवा के कैरेक्टर्स क्या है, मूवमेंट के। तो बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, वो सब वात के रिलेशन में आता है। तो जो भी अपने सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, अपने जॉइंट सिस्टम, वो वात का इंडिकेट करते हैं। पित्त जो है वो सन का, मतलब अग्नि, फायर कहाँ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो गैस्ट्रिक रिलेटेड सबको हम पित्त से कंपेयर करें। आइज में है, आइज में जो पावर है अपना, तो वो पित्त से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। और कफ जो है हम लोग मून या तो चांद, वी आर रिलेटिंग विद इट। सो बॉडी में जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उसमें कफ का गुण ज्यादा होता है। मिडिल एज में पित्त होता है, ओल्ड एज में वात होता है। और भी सिंपल के लिए, कफ महाभूत में पृथ्वी और जल ज्यादा होता है, पित्त में अग्नि होता है और वात में वायु, आकाश, राइट। आयुर्वेद का जो कॉम्बिनेशन है वो बॉडी, माइंड और सोल। आयुर्वेद सेज यू आर नॉट जस्ट बॉडी, आप सिर्फ बॉडी या शरीर नहीं है, आप शरीर, मन और आत्मा, इन 3 का कंपोजिशन हो। सत्व, रज, तम, ये भी अपने पढ़े होंगे और ये भी जानते हैं अपने सात्विक खाना क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक गुण क्या है। ये सारे मन के कैरेक्टर्स हैं, ये सारे आयुर्वेद के बेसिक्स हैं। दोष, धातु, मल, जैसे अपने दोष 3 दोष है, वात पित्त कफ। धातु जो है वो टिश्यूज, बॉडी के बिल्डिंग मटेरियल से, और मल जो है वेस्ट मटेरियल। जी हाँ, आयुर्वेद वेस्ट मटेरियल को बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि अगर आपका स्टूल ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बीमार है कि स्वस्थ है। अग्नि जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से। मैडम ने पहले जैसे काय चिकित्सा बताया, मैं काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में था। काय मतलब बॉडी, उसकी चिकित्सा जो होती है वो अग्नि की चिकित्सा होती है। तो कोई भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, अपनी हजम शक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं। आयुर्वेद के सारे बेसिस जो है संहिता में लिखे हुए हैं। आयुर्वेद के 3 बेसिक संहिता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय जो वाग्भट संहिता है। ये तीनों जो महर्षि है अपने, चरक, सुश्रुत और वाग्भट,
ये संस्कृत में लिखे हुए शास्त्र है, इसको संस्कृत में लिखा हुआ है। आप बोलोगे संस्कृत तो डेड लैंग्वेज है, नहीं, संस्कृत डेड लैंग्वेज नहीं है। कॉलोनियल रूल और जब समझ नहीं आता है तब अंगूर खट्टे होते हैं। तो हम लोग को जब ये समझ नहीं आया अपना आयुर्वेद और संस्कृत, हम इसको सोचने लगे ये डेड साइंस है, डेड है। लेकिन आज कोविड के टाइम में भी अपने को पता चल रहा है कि कितना महत्वपूर्ण साइंस है, इसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है। तो आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ पास्ट, इज साइंस ऑफ प्रेजेंट एंड ऑल्सो साइंस ऑफ फ्यूचर। तो कोई भी साइंस पढ़ते हैं तो उसका बेसिक्स पढ़ना पड़ता है। अगर कोई लड़का एमबीबीएस पढ़ने के लिए रसिया जा रहा है या अपने किसी काम के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, अपने सपोज उड़ीसा में जा रहे हैं, तो वहां की बेसिक लैंग्वेज ओडिया है, तो वो अपने को सीखनी पड़ती है एटलीस्ट अपना थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए। वैसे आयुर्वेद को समझने के लिए उसका बेसिक लैंग्वेज जो संस्कृत में है उसको जानना जरूरी है। और संस्कृत कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ये इजी सब्जेक्ट ही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को ये समझाया गया कि ये डेड है, ये हार्ड है, बट वैसा नहीं है। संस्कृत को तो फोर्ब्स मैगजीन ने बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी भी बताया गया है। तो ये जो आयुर्वेद की जो बेसिक्स है, 12th के बाद कोई साइंस कैंडिडेट जब संस्कृत पढ़ने आता है, थोड़ा वो भी समझ में वो हो जाता है कि ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ। बट जैसे जैसे उसको समझ आता है तब पता चलता है, तब आयुर्वेद के वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो समझ में उसको आते हैं और वो अप्लाई या रियलाइज कर सकते हैं। तो अपने जो ये बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं अभी भी वात पित्त कफ लेके अपने मन में चल रहा है कि ये क्या है। तो ये अर्थ और वाटर जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है बॉडी के, राइट। जो भी अपने स्ट्रक्चर्स है वो बॉडी के अर्थ और वाटर, पृथ्वी और जल महाभूत से रिलेटेड है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अपने खाना खा रहे हैं, हजम हो रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है फायर या तो पित्त को। और जो भी अपने बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट है, वो एयर और स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपने बॉडी को देखते हैं, वो एक एसेंस से बना है, तो उसमें प्रोसेसिंग हो रहा है और एक्सक्रीटरी सिस्टम हो रहा है, वही दो से धातु और मल का रिप्रेजेंट करते हैं। टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, ये पिक्चर देखते हैं। इसमें जो अपनी बहन है उसके साथ 3 बच्चे हैं, राइट। ये तीनों के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, वात पित्त कफ। आप जब एक आयुर्वेद वैद्य के चैम्बर में जाते हो या आयुर्वेद डॉक्टर चिकित्सक के पास जाते हो, आप पहले कहते हैं वैद्य जी मेरी नाड़ी पकड़ के, मेरी नब्ज पकड़ के बताइए वात पित्त कफ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाड़ी पकड़ने से ही वात पित्त कफ पता चलता है। अगर आयुर्वेद का नॉलेजेबल पर्सन है, आयुर्वेद का डॉक्टर अगर एक्सपर्ट है, वो बिना नाड़ी पकड़े आपका वात पित्त कफ का स्टेटस बताते हैं। जो वात वाला है, आप जस्ट रिमेम्बर, हवा और एयर और स्पेस एलिमेंट था, सी इज वेरी एक्टिव। पित्त वाला था थोड़ा फायरी और गुस्सा वाला दिख रहा है, और कफ वाला जो है शांत एंड रिलैक्सिंग है, हेल्दी है। सो ये जो कैरेक्टर है ना, ऐसा नहीं है कि सब में अलग अलग है। हम लोग का जो इंडिविजुअल प्रकृति है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तीनों दोष है। ऑल द 3 एलिमेंट्स, ऑल द 3 दोष, ऑल द 5 एलिमेंट्स, ये पांचों एलिमेंट्स अपने शरीर में है। और ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वात वाले हैं, जब अपना वात स्टेज एक्टिव होता है तो वी आर क्वाइट एक्टिव, हम लोग एक्टिव रहते हैं। और जब पित्त है तब हमें गुस्सा आ रहा है, और कफ है तो वी आर जस्ट, हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं। सही है। तो जब पित्त वाले रोग होते हैं अपने बॉडी में, तब वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है। कफ वाले हैं, वेट गेन हो रहा है, वी आर फीलिंग, हम लोग को लेथर्जी लग रहा है, टायर्डनेस लग रहा है, डायबिटीज, प्रमेय, ये सब कफ में आ जाते हैं। वात वाले रोग है, जॉइंट पेन है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये वात और पित्त कफ से रिलेट कर रहा है। और ये अपने कैरेक्टर्स में होते हैं। अपने सबका एक परसेंटेज है बॉडी में। वात का परसेंटेज किसी में 60 है, पित्त का 20 है, कफ का 20 है, किसी में डिफरेंट परसेंटेज में ये बॉडी कंस्टिट्यूशन होता है। और ये जो प्रकृति अपने को मिलती है वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। पेरेंट्स ने उस टाइम में क्या खाना खाया, किस नेचर में, कौन से मंथ में अपना बर्थ हुआ, तो ये इतना डीप साइंस है। तो अब जो मैं जैसे मैं बता रहा था, वात पित्त कफ सिर्फ नाड़ी से नहीं पता चलते हैं। वात वाले चंचल होते हैं, वात वाले के बाल थोड़े रफ और सॉफ्ट होते हैं, पित्त वाले के सिल्की बाल होते हैं, अगर बालों पे ही आते इजी टू समझने के लिए। कफ वाले के जो होते हैं वो कर्ली हेयर्स होते हैं एंड दे आर ब्लैकिश, उनके बाल भी काले घने होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स, अब आप डायरेक्ट लिंक करो पंच महाभूत से, पृथ्वी और जल महाभूत का अधिकता है इसलिए कफ का हो रहा है, पित्त का अधिकता है फायरी का, इसलिए साइनी एलिमेंट आ रहे हैं हेयर्स में,
तो अपने जब ट्रीटमेंट भी करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक सब चीज में दिखता है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, या हम लोग मंदिर में ही जा रहे हैं, या कहीं पे जा रहे हैं चप्पल जहाँ पे खोलना है, तो जो वात वाले हो गए ना वो हड़बड़ा के चप्पल खोल देते, एक इधर फेंका दूसरा उधर फेंका और अंदर चले गए हड़बड़ा के। पित्त वाले आएंगे जिसमें पित्त परसेंटेज हाई है, वो आएंगे, वो थोड़ा देखेंगे कहाँ पे रखे, यहाँ पे रखेंगे तो कहीं चप्पल भीग ना जाए मेरे, तो वो एक चप्पल यहाँ रखेगा, एक चप्पल छुपा के रखेगा, कोई ले ना जाए, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और कफ वाला आएगा, वो धीरे से आएगा, आस्ते से चप्पल खोलेगा, पास में रखा हुआ, फिर अंदर आएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ना अपनी, ये हर चीज में दिखती है। तो आयुर्वेद इसका और आगे अपने देखते हैं, इसका स्कोप क्या है, अप्लाइड बेनिफिट्स क्या है। पहले तो आयुर्वेद कहता है स्वस्थ, स्व अवस्था। आपको अपने स्टेज में रहना है। हमारा स्टेज क्या है, सारे दोष धातु और ये सब है बैलेंस में होना चाहिए, अपने प्रसन्न होना चाहिए। आयुर्वेद की डेफिनेशन जो स्वस्थ की है, समदोष सम अग्निस्स सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो ये जो स्वस्थ की डेफिनेशन है वो फिजिकल हेल्दीनेस नहीं है, वो मेंटल हैप्पीनेस भी है। तो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक अगर हमारे में आ रही है तो हम स्वस्थ है। अब एक बात ले लो, चलो मेरा सब बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, एवरीथिंग नॉर्मल है, लेकिन मेरा सुबह पेट साफ नहीं आया, तो क्या मैं हैप्पी होऊंगा? नो। तो आई एम नॉट ऑल्सो स्वस्थ इन दैट केस। तो ऐसा नहीं कि आपके सारे लैब रिपोर्ट्स नॉर्मल होने चाहिए, और वही लैब रिपोर्ट से बात आती है तो आप पूछोगे वात पित्त कफ को कौन से लैब में अपने मेजर करते हैं? जी नहीं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो क्वालिटेटिव भी होते हैं, ऐसे नहीं कि सब क्वांटिटेटिव होते हैं। अब हवा को हम लोग देख नहीं सकते, तो इसका ये मतलब नहीं हवा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। वैसे वात पित्त कफ अपने देख नहीं पा रहे, लेकिन वो क्वालिटी से रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि हम लोग ने अब तक डिस्कस किया। और आजकल तो नाड़ी परीक्षा के भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गए, जिससे ये कैलकुलेशंस होते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोष का जो बैलेंस है ये अपने कैरेक्टर में रहना चाहिए, उसको वो बैलेंस करना ही स्वस्थ है। आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट होती है वो दो प्रकार की होती है। हम लोग सारे बेसिक बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, फिर अपने डिस्कशन पे आएंगे। ट्रीटमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है, शोधन और समन। अपने जो ट्रीटमेंट देखते हैं कि डॉक्टर के पास गए, प्रेस्क्रिप्शन लिखा दिया, वो एक समन है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी आपको, वो सुबह लेनी है, शाम लेनी है, 5 दिन लेनी है, 1 महीना कोर्स करना है, दैट इज एक्चुअली समन चिकित्सा। वो सारे साइंस सारे पैसे में है। और जो शोधन चिकित्सा है वो आयुर्वेद का यूनिक कंट्रीब्यूशन है। शोधन मतलब बॉडी क्लिनजिंग, बायो प्यूरिफिकेशन। शोधन चिकित्सा में आयुर्वेद के पंचकर्म आते हैं। अपने पंचकर्मा का नाम सुने होंगे, केरला। आपका आवाज नहीं आ रहा है डॉक्टर। इट्स कमिंग। हाँ अब आ रहा है, यस अब आ रहा है। ओके ओके, कुछ मिस हुआ? कुछ नहीं आ रहा था। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ये जो टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, बट इसको भी अपने को बैलेंस करना है, समता लाना है। तो वही आयुर्वेद का प्रिंसिपल्स है, वही हम कह रहे थे। तो जो ये ट्रीटमेंट है ना, ये दो तरह की है। शोधन जो बायो प्यूरिफिकेशन पंचकर्मा है, जो अपने बहुत बार कैरेलियन थेरेपी कह के भी कहते हैं, बट ये आयुर्वेद का यूनिक कंट्रीब्यूशन है। आप बोलोगे हम शोधन क्यों करेंगे, बायो प्यूरिफिकेशन क्लेंजिंग क्यों करेंगे? टू मेक इट इजी, अपनी जो गाड़ी होती है उसकी सर्विसिंग कराते हैं अपने, एवरी फ्यू मंथ्स गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। तो वो क्यों कराते हैं? बिकॉज उसकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, उसका फंक्शनिंग अच्छा रहे। वैसे बॉडी में भी अपने जंक ले रहे, अपना खाने, अपना एयर जो है पॉल्यूटेड है, तो सारा एनवायरनमेंट अभी डिस्टर्ब है। तो हर सीजन में अपने को स्पेसिफिक डिजीजेस देखी जाती है। तो आयुर्वेद की जो संहिता और टेक्स्ट होती है ना, वो कहीं मेडिसिन से शुरू नहीं होती है। अपने जो पहले बातें में डिस्कस किए कि चरक संहिता, सुश्रुत, तो आप ये अगर किताब, ये संहिता खोलोगे तो इसमें पहले मेडिसिन नहीं लिखी हुई है, क्योंकि अपने जो ऋषि साइंटिस्ट है उन्होंने कहा नहीं, आपको पहले स्वस्थ मेंटेन के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वे ऑफ लिविंग है। और मेडिसिन को उन्होंने बाद में बताया कि आपको पहले ये रूल्स फॉलो करना है। अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे तो आप बीमारी नहीं होगे, दवाई की क्या जरूरत है। तो ये जो ऋतुचार्य होती है, कौन से सीजन में क्या खाना है, ये सब स्पेसिफाई उसमें किया गया है। और देखा जाता है कि कुछ सीजन में पार्टिकुलरली अपने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। जैसे बारिश के दिन में अभी बहुत जन को हो सकता है कि प्रीवियसली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था,
या कोई जॉइंट पेन थे वो अभी बढ़ गए, एग्रेवेट हुए हैं, तो वात की जो ट्रीटमेंट होती है वस्ती, उसके लिए ये बेस्ट सीजन है। आयुर्वेद की ट्रीटमेंट में आहार, विहार और औषधि। आहार जो है फूड, विहार जो है अपनी लाइफस्टाइल, और औषधि जो मेडिसिन, इन तीनों का इंपॉर्टेंस है। ये कहता है यू हैव टू रेस्पेक्ट नेचर, नेचर के सारे रूल्स को फॉलो करना है फॉर बैलेंस। अब नेचर के रूल्स है, ठंड के दिन में अपने को स्वेटर लगेंगे, 2 स्वेटर पहनते हैं तो भी ज्यादा ठंड है तो भी, और अभी जैसे अगर थोड़ा सा बारिश और गर्म है, अपने को अगर कोई बोलेगा स्वेटर पहनो, सो बॉडी अपने आप एडजस्ट करता है सीजन के साथ। सो आयुर्वेदा इज जस्ट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ नेचर, और अपने जो भी मेडिसिन या जो भी फूड लाइफस्टाइल इसमें फॉलो करते हैं वो सिर्फ बॉडी को बैलेंस के लिए हेल्प करती है। ये जो आरोग्य सूत्र होते हैं, जो मैं बता रहा था कौन से सीजन में क्या खाना है, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, ये सारे अपने टेक्स्ट में बताए गए। ये कहीं ना कहीं अपना जो अभी रक्षाबंधन, राखी जो बांधते हैं, तो उसमें भी कोई बंधन में अपने रखते कि ये कुछ एक भाई बहन का प्रेम होता है, उनकी एक दूसरे के प्रति जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसी अपने हेल्थ के प्रति अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सारे जो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स बताए गए हैं वो आयुर्वेद में बताया है। और आयुर्वेद इंटरेस्टिंगली जब अपने फिजिकल कंस्टिट्यूशन से देखा, वात पित्त कफ का परसेंटेज अलग है सब में, तो ये यही कहता है कि वन साइज फिट्स नॉट ऑल, एक साइज का शर्ट सबको नहीं होगा। एक ड्रेस लेके हम आएंगे और कहेंगे कि सब लोग के लिए सेम मेजरमेंट रहेगा, इज इट पॉसिबल? नो। तो इसलिए आयुर्वेद थोड़ा बहुत टफ हो जाता है बहुत जन को, जब समझ नहीं आता है कि आयुर्वेद में बुखार की कौन सी दवाई है। एलोपैथी में तो पैरासिटामोल, क्रोसिन, या तो अपने पीसीएम मेडिसिन है, उसका डोज बता दिया ये लेना है। तो आयुर्वेद में क्या है, किसी को पूछोगे वो बोलेंगे महासुदर्शन चूर्ण ले लो, कोई कहता है लक्ष्मी विलास रस ले लो, कोई कहेगा तुलसी ले लो। तो ये जो स्पेसिफिक इंडिकेशन है वो डिसाइड किया जाता है, और आयुर्वेद ट्रीटमेंट जो है थोड़ी टेलर मेक है। वो स्पेसिफिक, जैसे मेरे को अगर ड्रेस बनाना है, मेरे हाथ लंबे है या मेरा जो मेजरमेंट है, वो मैं अपने टेलर के पास जाके फिटिंग कराता हूँ। और एलोपैथी या जो मॉडर्न साइंस की ट्रीटमेंट अभी है वो कहीं ना कहीं रेडीमेड है। अब तो अभी जो परिचय पत्र चल रहा था उसमें अगर कैंडिडेट की कल शादी है, वो बोलेगा मैं आज शोरूम में जाके मैं तो अपना रेडीमेड ड्रेस लेके आ गया। बट अगर परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आपको अपने टेलर के पास, अपने वैद्य के पास परफेक्ट साइज, परफेक्ट कंस्टिट्यूशन, परफेक्ट वो मेजरमेंट करना है। तो इसका पहला प्रिंसिपल जो है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, स्वस्थ आदमी की स्वस्थ मेंटेन करना है, आयुर्वेद का फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसलिए ये सारे जो रूल्स हैं, डेली ऋतुचार्य बताया गया है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको अभ्यंग करना है, शरीर में ऑयल मसाज करना है, सेल्फ ऑयल मसाज, आपको स्नान करने के बाद खाना लेना है, आपको जो अपना धर्म अर्थ काम, ये जो बहुत बार हम लोग आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजीज को समझते नहीं है संस्कृत को, और उसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते, धर्म मतलब रिलीजन, वो चीज नहीं है। इंडियन साइंस में जो है बहुत एक डीप साइंस है। ये तो वैसा ही हो गया अगर मेरे को हिंदी सीखनी है और मैं ऐसे इंग्लिश में टाइप कर दिया DHARM में धर्म, तो मेरे को हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट सीखनी होगी। तो कोई भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसका बेसिस रहता है। तो आयुर्वेद में जब ये धर्म अर्थ काम कहता है, अर्थ मतलब योर वे ऑफ लिविंग, जीने के लिए जो अपने को चाहिए जरूरी है, कपड़े है, खाने हैं, वो सारे अर्थ में आ जाता है। और अर्थ मतलब सिर्फ ऐसा नहीं आता है, कहीं ना कहीं अपने मीनिंग प्रिंसिपल्स भूल जाते हैं। अब आप बताओ कि धनतेरस कब है? अपने को सबको पता है धन लक्ष्मी की पूजा होती है दिवाली के पहले। तो धन लक्ष्मी जो है लक्ष्मी माँ की होती है। तो अगर आपको कोई निमंत्रण देता है कि भाई आप आना, परिचय पत्र हो गया, घर में शादी आना, और आपके हस्बैंड को, आपके पापा को अगर मेल मेंबर्स को नहीं बुला रहा है तो बात तो नहीं बनेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ ही परफेक्ट फिटिंग होती है। वैसे धन, अपनी जो धन लक्ष्मी है ना, वो धनवंतरी विष्णु जी के साथ है। विष्णु जी का एक रूप है धनवंतरी, और धनवंतरी जो है आयुर्वेद के ओरिजिनेटेड कहा जाता है, आयुर्वेद के भगवान है धनवंतरी। और धनतेरस के दिन धनवंतरी और धन लक्ष्मी दोनों की पूजा होती है। हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए ना अपने को, तो दोनों की आप पूजा करिए। और काम जो है वो सिर्फ डिजायर फॉर एनीथिंग, डिजायर फॉर एवरीथिंग इज काम। मेरे को ग्रोथ करना है, ये भी एक डिजायर हुआ, तो कामा इज दैट वन।
वैसे स्वस्थविद में बताया गया निद्रा, अपना नाइट रेजिमेंट बताया गया है। सुबह अपने को जल्दी उठना है, सूर्य सनसेट की तरह अपने को जल्दी सो जाना है, खाना भी जल्दी होना चाहिए। एक स्टडी रिसर्च में पता चला कि डायबिटीज वाले जो होते हैं अगर वो अर्ली डिनर करते हैं तो उनके शुगर अपने आप कंट्रोल होने लगता है। नाइट रेजिमेंट की बात ले लो, अगर हम बच्चे लोग का स्कूल में जब हम स्टडीज करते हैं कि जो बच्चे रात में जाग के पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे सुबह ब्रह्म मुहूर्त जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं, दोनों में अगर कंपेयर करते तो हेल्थ स्टेटस जो है अर्ली टू वेक, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाले का बेटर होता है। आप खुद देख लो, अगर जो नाइट शिफ्ट में आप काम कर रहे हो या रात जाग रहे हो, उस दिन आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक इश्यूज रहती है। तो कहीं ना कहीं ये दिनचर्या जो ये रूल्स बताए गए, ये रूल्स आर फॉलोइंग लाइक ट्रैफिक रूल्स होता है, ट्रैफिक रूल्स की तरह ये बॉडी को फॉलो करना है। आप कहोगे हम क्यों फॉलो करेंगे? प्रेगनेंसी में अपने सेल्फ केयर को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या खाना है क्या नहीं है, दादी कहती है, सास मदर इन लॉ कहती है ये आपको लेना है ये नहीं लेना है, आप खुद अपने हिसाब से नहीं नहीं मेरे को अभी पिज्जा नहीं खाना है क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर माय बेबी, स्मोकिंग नहीं करना है। तो ये जो सारे जो सेल्फ केयर रूल्स बनते हैं ना, वो आयुर्वेद के टेक्स्ट में बताए गए हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई गई है कि जो फास्टिंग होता है उसको लंघन कहा गया है। फास्टिंग मतलब वेट लॉस के लिए जो फास्टिंग होती है वो भी एक साइंटिफिक फास्टिंग होनी चाहिए। खाली पेट अगर रहते हैं तो गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ती है, तो उसको फास्टिंग नहीं कहेंगे। अपने अभी जो एकादशी या फास्टिंग करते हैं, फ्राइड ऑयल ही खाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट कंसेप्ट। अपने बेसिक टेक्स्ट को देखेंगे तब पता चलेगा। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार के बारे में बताया गया। गर्भ संस्कार जो 9 महीने और उसके पहले जो प्री प्लानिंग होती है, वो पूरा प्रोसेस को एक किस तरह से क्या खाना है, कैसे एक हेल्दी बेबी होगा, उसको लेके ये जैसे अभिमन्यु, शिवाजी, ये सारे एग्जाम्पल अपने सामने आते हैं कि गर्भ में जो गर्भ में बेबी के साथ जो बात होती है, गर्भ के म्यूजिक जो होते हैं, गर्भ संस्कार के म्यूजिक, ये सारे आयुर्वेद के कंसेप्ट है। स्वर्ण प्राशन भी आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहा जा रहा है थर्ड वेव में स्वर्ण प्राशन इज वेरी इफेक्टिव। स्वर्ण प्राशन जो होता है, स्वर्ण भस्म का हनी और घी के साथ एक कॉम्बिनेशन करके बच्चों को जन्म के बाद टिल द एज ऑफ 16 ईयर्स दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी सेल्फ केयर की बातें आयुर्वेद में बताई गई है। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ आयुर्वेद, जो डिजीज केयर और वेलनेस है। डिजीज केयर तो कहीं ना कहीं ये फोटो अपने सामने आ जाता है कि आयुर्वेद मतलब कोई ऑयल मसाज और ये नहीं, ये तो सिर्फ बेसिक है, ये तो पिक्चर की शुरुआत है और डिटेल्स में बहुत कुछ है। कौन सा तेल यूज करना है, अब एक कोई स्टैंडर्ड आयुर्वेद कंपनी की देखोगे उसकी मोर देन 200 डिफरेंट ऑयल्स आते हैं। कपास आदि तेल आता है जिसमें कॉटन रहता है, नारायण तेल है, शतावरी इंपॉर्टेंस है, और कर्पूर आदि तेल है उसमें कर्पूर है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वास के रोगी को कौन सा देना है, साइटिका में कौन सा देना है, बैक पेन में कौन सा देना है, वो बहुत स्पेसिफिक है। आयुर्वेद इतना स्पेसिफिक साइंस है कि इसको पर्सनलाइज साइंस कहा जाता है। थेरेपी के साथ मेडिकेशंस दी जाती है। मेडिसिन में सिंगल मेडिसिन रहते हैं, ये जो हर्ब्स है, तुलसी, हल्दी, ये सब सारे सिंगल मेडिसिन में आ जाते हैं एक जड़ी बूटी के हिसाब से। और अपने ऋषि साइंटिस्ट, अपने जो पूर्वज थे, एंसेस्टर, वो लोग इतने साइंटिफिक थे कि इसको अपने किचन में ही ला लिया, तो अपने रसोई घर में ही ये है। तो सारी दवाई जो हल्दी, अदरक, सौंठ, ये सब अपने लेते हैं, ये बहुत एक अपने डेली लाइफस्टाइल में, कल्चर में लाया गया है। आज कोविड के टाइम में इवन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप टर्मरिक मिल्क लो, फॉरेन में चले जाओ वहां पे टर्मरिक लेटे मिलता है, जैसे कॉफी लेटे अपने यहाँ लेते हैं। तो ये जो टर्मरिक कंसेप्ट है, ये हम लोग के हर घर में है, हम लोग को इसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अगर आप किसी देश में चले जाओ जहाँ पे टर्मरिक नहीं खाया जाता है, उनको पूछिए तो उनको पता चलेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो जब टर्मरिक की बात आएगी तब उसको अपने को प्योर फॉर्म में लेना है, ऐसा नहीं कि पैकेट वाला कोई लेना है। ऑर्गेनिक है, स्टैंडर्डाइज है, वो चीज देख के आप यूज करो। और अपने को बहुत बार अपनी चीज का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। टर्मरिक का तो अमेरिका भी पेटेंट बनाने निकला है। तो वी शुड, हम लोग को ये समझना जरूरी है कि हम लोग अगर अपने आयुर्वेद को समझ पाएंगे तो ये खजाना है, अपने पास है, लेकिन वो बंद तिजोरी में पड़ा हुआ है। अब आपकी जो नेकलेस, सोने, ऑर्नामेंट्स अगर हम बंद ही रख दिया, आप पहनने के लिए नहीं निकाले, तो कैसे पता चलेगा कितने सुंदर ऑर्नामेंट्स है आपके। तो ये जो कंपाउंड मेडिसिन भी आयुर्वेद में बनती है, जैसे कोई सीतोपलादी चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण, 3 चीज है त्रिफला। सारे नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। अश्वगंधा अगर कह रहे तो अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े के स्मेल का हर्ब है ये, इसलिए, या घोड़ा जैसे स्ट्रेंथ मिलता है।
तो अगर कंसेप्ट में अपने जाएंगे ना तो ये साइंस बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और कहीं ना कहीं अपने सारे इंडियंस के ब्लड में है। बस थोड़ा सा इसको ट्रिगर करना है। तो जो कंपाउंड मेडिसिन होती है वो एक वैद्य के सुपरविजन में प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे अगर मेरी गाड़ी जो मैंने सर्विसिंग करने के लिए दी, मैं खुद नहीं करता हूँ, हाँ वॉशिंग करना है मैं खुद कर लिया, लेकिन उसका जब कोई इंजन खराब है, कुछ चेंज करना है, तो आई हैव टू गो टू मैकेनिक, मुझे मैकेनिक के पास जाके। वैसे आयुर्वेद का भी जो छोटी छोटी चीजें हैं डेली लाइफस्टाइल में, वो आप खुद अपने होम रेमेडीज में कर सकते हो। लेकिन जो ट्रीटमेंट की बात आती है तो यू हैव टू डेफिनेटली आपको एक वैद्य के पास या एक आयुर्वेद एक्सपर्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में दवाई जो होती है मिनरल्स भी होती है, मेटल मिनरल्स, इससे बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, ये तो हैवी मेटल्स है आयुर्वेद में, बट कहीं ना कहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हो जाती है। अगर थाली कहता हूँ और थाला, थाली थाले में तो बहुत डिफरेंस है। इंग्लिश में क्या कहोगे भाई? इंग्लिश में दोनों को तो प्लेट कहते हैं। तो आप मुझे बताओ थाली और थाले में फर्क है कि नहीं? लेकिन इंग्लिश में तो दोनों प्लेट हो गई। तो बहुत बार अपने जब देखते हैं कि आयुर्वेद में तो भाई पारद, गंधक, सोना, मर्क्यूरी यूज होता है, लेड यूज होता है, बट वो वही चीज हो गई, अपने समझे नहीं। और थोड़ा इजी करने के लिए चावल, और जब उसको हम पका लेते हैं प्रेशर कुकर में भात बना लेते हैं, क्या वो सेम है? चावल, कच्चा चावल क्या हम खा सकते हैं? नहीं। और जब वो कुक हो जाता है तब इट्स वेरी टेस्टी एंड वेरी एनर्जी, राइट? तो वैसे जो आयुर्वेद में जब ये पारद, गंधक, मर्क्यूरी या जो यूज होते हैं वो डायरेक्ट यूज नहीं होते हैं कभी, वो शोधित करके उसका एक प्रोसेसिंग प्रोसेस होता है, वो किस तरह बॉडी में एब्जॉर्ब होगा उस तरह से उसको बनाया जाता है, तभी मेडिसिन में आता है। रसौषधि अगर अच्छी तरह बनाई गई है तो कोई साइड इफेक्ट, कोई मेटल टॉक्सिसिटी नहीं करती है बॉडी में। और ये बहुत जरूरी है अपने बॉडी में भी। आप कहोगे हमारे बॉडी में आयरन नहीं है, ब्लड में क्या है? हेमोग्लोबिन में आयरन है। आप अगर दांत की बात करोगे, अपने बोन्स की बात करो, कैल्शियम है, फास्फोरस है। तो अपना बॉडी तो मेटल मिनरल से बना हुआ है। यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो आयुर्वेद कहते हैं उसको शोधित करके अपने प्रवाल, मोती, सब कुछ को यूज करते हैं जो नेचर में, बट उसको प्रोसेसिंग करके यूज करना है। और वो प्रोसेसिंग के लिए आयुर्वेद का एक डेफिनेट साइंस है जिसे रसशास्त्र कहा जाता है। आयुर्वेद में जो कंसल्टेंसी होती है वो ओपीडी, ओपीडी मतलब आप डॉक्टर के चैम्बर में गए, उन्होंने आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब की, 1 मंथ या कुछ दिनों के बाद फॉलो अप के लिए बुलाया, वो ओपीडी है। और आईपीडी जो एडमिशन होकर ट्रीटमेंट होती है, वो भी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, जैसे कि हम देख रहे थे कि आयुर्वेद को कॉलोनियल रूल में इसको सप्रेस किया गया था, इसलिए आयुर्वेद डॉक्टर्स या आयुर्वेद हॉस्पिटल के बारे में हम लोग को आइडियाज नहीं है। बट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इवन कोलकाता में मैं जिस इंस्टीट्यूट से हूँ, हर स्टेट में आयुर्वेद के आईपीडी और हॉस्पिटल्स हैं। कोरोना टाइम में आईसीयू में भी आयुर्वेद की मेडिसिन दी गई है अंडर द सुपरविजन ऑफ आयुर्वेद डॉक्टर। आयुर्वेद के भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, काई चिकित्सा मतलब इंटरनल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, मानस रोग, माइंड और डिफरेंट नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो केरला में तो स्पेशल आयुर्वेद के मानस हॉस्पिटल्स भी है, जहाँ पे अलग अलग सिजोफ्रेनिया और अलग अलग मन के जो माइंड नर्वस सिस्टम रिलेटेड कंप्लेंट्स होते हैं उसको हैंडल किए जाते हैं। ऊर्ध्वांग, ऊपर के अंग, ईएनटी और आई, आयुर्वेद में इसका भी स्पेशलाइजेशन है, इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। शल्य, सर्जरी, जो सुश्रुत आयुर्वेद की देन है। तो आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट की जाती है उसमें कुछ अपने को पता है। अगर आयुर्वेद वैद्य के पास, चिकित्सक के पास जाएंगे, वो बोलेंगे ये मत खाओ, ये मत खाओ, उसके पीछे भी कारण होता है। नवज्वर मतलब न्यू फीवर जो होता है, उसमें कहा जाता है कि आपको स्नान नहीं करना है, ऑयल मसाज नहीं करना है। ये सारे के पीछे एक बेसिस है। अब अगर किसी को कोविड हुआ है या कोल्ड कफ हुआ है, अगर वो आइसक्रीम चॉकलेट्स खाएगा, एसी में रहेगा, तो क्या आपको लगता है उसका इंप्रूवमेंट होगा? नहीं ना। इसलिए आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद कहता है ट्रीट द कॉज, कारण को पहले चिकित्सा करो। जिस कारण से रोग हो रहा है अगर उसकी ट्रीटमेंट करते हो तो आपकी डिजीज में इंप्रूवमेंट आता है। अगर मैं मिठाई खा रहा हूँ, स्वीट्स खा रहा हूँ, वो हजम नहीं हो रहा है और मेरा शुगर ज्यादा रह रहा है, और मैं कहूंगा मैं डाइट को कुछ फॉलो नहीं करूंगा, आप सिर्फ मेडिसिन बताओ कि मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और दवाई खा के रिपोर्ट्स नॉर्मल रखना है, दैट इज नॉट ट्रीटमेंट। आप दवाई खाओगे और शुगर की रिपोर्ट्स नॉर्मल है एंड यू आर हैप्पी, ये कहीं ना कहीं आपको ये सोचना है कैसे मेरा शुगर कंट्रोल हो जाए, मैं कैसे मेरी 2 से 1 दवाई हो। दवाई
कितनी लिमिट में ले सके और जरूरी है वही लेनी है। तो जो वेट कर रहे थे अपने जिस बात का कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब वैद जी कुछ ना कुछ टिप्स बताएंगे, तो वो स्लाइड में अपने आ गए। आई थिंक मेरे पास और 10 मिनट है, राइट? तो मैं रैपिड फायर राउंड में ना जाके मैं जस्ट टिप्स में आता हूँ। ये होम रेमेडीज, तो होम रेमेडीज जैसे मैं बता रहा था कि ये कुछ छोटी छोटी जो चीजें होती है ये अपने सब लोग जानते हैं, बट कौन सी कहाँ पे देनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर टिप्स की बात आप मुझे पूछोगे तो आई विल से अबाउट विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार जो है, आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया कौन से खाने का कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं करना है। जैसे दूध, दूध और गर्म चीज, ये दोनों कंबाइन नहीं होगा। अपने कोल्ड कॉफ चाय लेंगे और चाय के साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट राइट। दूध के साथ प्याज और लहसुन, दिस इज नॉट ओके। दोनों हाई प्रोटीन है, वो बॉडी में जाके रिएक्ट करता है और डिफरेंट स्किन डिजीजेस लाता है। तो जब आपको आयुर्वेद की टिप्स के बारे में जानना है तो गो फॉर विरुद्ध आहार, क्या नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं, क्योंकि सारी जो कंसेप्ट है वो बैलेंस पे आते हैं। तो पहले मिथ्स पे आते हैं, जो भूल बातें अपने को पता है। सेल्फ मेडिकेशन, आयुर्वेद भी एक साइंस है। अब गाड़ी का रिपेयर करना है तो मैकेनिक के पास जाते हैं, खुद तो नहीं कर लेते। वैसे ये साइंस को भी ट्रीटमेंट अगर लेनी है, सेल्फ मेडिसिन मत करिए। आयुर्वेद ओटीसी नहीं है। च्यवनप्राश खुद ले लिया, 12 मंथ्स लिया, वैसा कहीं पे कंसेप्ट में नहीं लिखा है आयुर्वेद के। आयुर्वेद के शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आप एलोवेरा जूस डेली लो, ये भी कहीं नहीं लिखा है। तो अपने को पहले कंसेप्ट में जानना है, फिर उसको फॉलो करना है। आयुर्वेद दवाई गर्म होती है। अच्छा, आयुर्वेद दवाई अगर गर्म होती है तो ये जो धनिया, सौंफ, ये सब भी क्या है, प्रवाल, मोती, ये तो सारे कूलेंट प्रॉपर्टी के मेडिसिन है। आयुर्वेद दवाई गर्म नहीं होती है। जब हम लोग उसको रॉन्ग प्रोसेस में लेते हैं, किसी ने ज्यादा मेडिसिन लिख ली, एक साथ 8-10 मेडिसिन ले रहे, उसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं कर रहा है, तब वो गर्म होती है। अदरवाइज आयुर्वेद मेडिसिन कोई गर्म नहीं होती है। आयुर्वेद इज स्लो, नहीं भाई, आयुर्वेद स्लो नहीं है। आयुर्वेद रूट लेवल की ट्रीटमेंट करता है, वो कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करता है कि आपको बुखार है दवाई लेके बुखार कम कर दिया। वैसा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं है। बुखार क्यों है, कौन से इन्फेक्शन के लिए है, कौन से टिश्यू लेवल में डैमेज है, उसको वो ट्रीट करता है। इसलिए वो टाइम प्रोसेस में ठीक होता है, इसलिए। और आयुर्वेद के पास अपने जाते कब है, लेट से जाते हैं। तो लेट से जाते हैं तो उतना लंबा डिजीज हुआ है तो उसको टाइम तो लगेगा ठीक होने में। आयुर्वेद में जनरलाइज ट्रीटमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं अपने अलग अलग मैगजीन्स में या टीवी के बहुत सारे स्पीकर्स को या किसी आसपास के पड़ोसी को सुनते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, चंद्रप्रभा ले लो, गिलोय ले लो, गोखरू ले लो, ये सारे जनरलाइज ट्रीटमेंट है। एक्चुअल आयुर्वेद ट्रीटमेंट अगर करना है तो वो स्पेशलाइज्ड होती है, वो स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट होती है। और आयुर्वेद के बारे में, इट्स बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी कंसेप्ट ही मॉडर्न साइंस के पास नया था। और जबकि आयुर्वेद में च्यवनप्राश तो च्यवन ऋषि के समय से बताया गया है। अब ये च्यवन ऋषि ने ये दवाई ली थी, इसलिए नाम वैसे रखा गया च्यवनप्राश। अश्विनी कुमारों ने ये दवाई बनाई थी और इससे रेजुविनेट हुआ था। ओल्ड एज से भी यंग एज वाले, उनके बॉडी में स्ट्रेंथ आ गया था। तो आप मुझे बताओ कि क्या जो जड़ी बूटी पहले मिलती थी, क्या अभी वो मिलती है? नहीं, इतने सारे फॉरेस्ट और सारे सब कुछ डैमेज हुआ है। तो अगर आयुर्वेद को ऊपर लाना है, अगर आयुर्वेद को प्रैक्टिस में लाना है, तो अच्छी मेडिसिन, अच्छे हर्ब्स और ये सबको डेवलप करना है। हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे, संजीवनी को लेके रिसर्च होने चाहिए भाई, वो जड़ी बूटी है कि कहाँ है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है, अगर उसके रिजल्ट मिलते हैं वही टिप्स होता है। सो आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऑलवेज अंडर बीएमएस प्लस डॉक्टर। हल्दी आंवला, निशा आंवला, ये डायबिटीज की, प्री डायबिटीज की बहुत अच्छी दवाई है। और इसमें जैसे मैं बता रहा था, आंवला और हल्दी दोनों क्वालिटी में बेस्ट होनी चाहिए। इट शुड बी प्रॉपर, तो ही रिजल्ट मिलेगा। और ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, डू आस्क इसके डोज और ड्यूरेशन, कितना टाइम लेना है। कोई भी दवाई होती है उसकी स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है, तो वो आप डेफिनेटली एक वैद्य से, एक आयुर्वेद फिजिशियन से कंसल्ट करके उसको जाने। तो मैंने जो ये छोटी छोटी बातें बताई, ये कहीं ना कहीं सीरियल का एक एपिसोड था। हो सकता है एक झलक में मैंने बताया, परिचय पत्र हुआ, राम जी और सीता जी की शादी हुई। लेकिन ये रामायण जो है ये बहुत बड़ा है, राइट? ये एक मेगा सीरियल है और वन एपिसोड में
ये परिचय नहीं होता है, बट छोटी सी झलक में मैं जो कहना चाहता था वो मैंने आप तक कहने की कोशिश की। स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, पहले कैसे स्वस्थ रहे इसके बारे में आप वर्कआउट करिए, इसके बारे में टिप्स फॉलो करिए। सुबह जल्दी उठना है, कौन से योगासन करने हैं, क्या खाना है, कौन से मौसम में क्या खाना है। अभी तो सब्जियां हर मौसम में मिलती हैं, आम हर मौसम में मिलता है, आम क्या हजम होगा? पहले के लोग आम और दूध को एक साथ लेते थे। आम रस बहुत अच्छी एनर्जी के लिए टेस्टी भी है, बट अभी तो आम को कार्बाइड से पकाया जाता है, केमिकल से। तो आपको नहीं लगता ये केमिकल और दूध रिएक्ट करेगा? अब दूध की बात आई, दूध देसी गाय का दूध कहाँ मिलता है? अगर दूध के जो क्वालिटीज बताए गए वो देसी गाय के दूध के, अभी तो मिलते हैं हाइब्रिड पैक मिल्क आता है, तो इसके तो साइड इफेक्ट्स होंगे ही। ये हार्मोनल मिल्क है, तो हार्मोन बहुत बार हमारे पास पीसीओडी या गायनी केसेस आते हैं, हम कहते हैं आप दूध लेना बंद करो। यहाँ जो हम दूध से रेफर करते हैं वो आज का दूध है जो कि असली नहीं है। तो अगर असली आयुर्वेद असली को करना है तो हम लोग को बेसिक लेवल से वर्कआउट करना है। दुनिया फिर से चेंज हो रही है, गाड़ी का या साइकिल का जो चक्का होता है वो फिर से ऊपर आता है, फिर से हम लोग नेचर के पास जा रहे हैं। वी आर एनर्जी वाइज चेंज हो रहा है, केमिकल से हम लोग नेचुरल की तरफ जा रहे हैं। और मेरे समरी के हिसाब से यही कहना चाहूंगा कि ये जो छोटी छोटी बातें मैंने आप तक पहुंचाई, ये जो पहले पिक्चर में भी ये था कि परिचय में, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ऊपर आया होगा। मुझे आशा है कि आप तक मैं आयुर्वेद का एक परिचय और कोई भी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो, डेफिनेटली हम लोग वो अब डिस्कस करेंगे लास्ट 10 मिनट्स में। आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ, इट्स वे टू लिव एंड अचीव हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सिर्फ हेल्थ नहीं, हैप्पी भी होना है, तो आयुर्वेद वही सिखाता है। इसके जो प्रिंसिपल्स है, इसको अपने अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली अपने को रिजल्ट मिलता है। माय प्रणाम टू ऑल द नारी शक्ति एंड ऑल इन सखी टीम टू इनवाइट मी, एंड आई लाइक योर टैगलाइन, लेट्स ग्रो टुगेदर। सही है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, इस सिंगल एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आपको आयुर्वेद के साथ आई एम श्योर मूवीज एंड सीरियल्स का भी इंटरेस्ट होगा। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपने वो फर्स्ट स्लाइड एंड लास्ट स्लाइड को मैच किया, जहां पर एक परिचय में कुछ नहीं दिख रहा था, लास्ट के स्लाइड में हमने देखा कि किस तरीके से वो उभर कर आया है। थैंक यू सो मच। मेंबर्स, यू कैन रेज